1991, the issue of feminism resurfaced in the mainstream media on a broad scale. Resurfaced in the mainstream media on a broad scale. Resurfaced बोल रहा है तो इसका मतलब पहले भी कभी हुआ होगा ना कुछ इशू ऑफ फेमिनिज्म, तभी तो रीसरफेस हो रहा है, राइट? Resurface in the mainstream media on a broad scale, from the release of film Some This to the publication of such books as this. ठीक है, ठीक। तो इन सब बुक्स की वजह से रीसरफेस हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया ऑन अ ब्रॉड स्केल। हमें सिर्फ ये वाली लाइन ध्यान रखनी थी, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कौन सी बुक्स थी, क्या करना तुम्हें। Release of this to the attention given to the issue of sexual harassment in the wake of this hearing. To the attention given to the sexual harassment in the wake of the some case होगा hearing उसके उसमें, ठीक है। ये चीज हमने समझी कि यार रीसरफेस कर गई मेन स्ट्रीम में क्या चीज, द इशू ऑफ फेमिनिज्म। To the attention given to the issue of sexual harassment in the wake of the some hearing. Shortly after the Hills या Thomas hearing brought the issue of sexual harassment into the public eye, the music industry was rocked by the announcement of allegation of sexual harassment involving executives at three major record companies and an attorney at a leading law firm. तो वहां पे केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी थे, उसकी वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री वाज रॉक्ड, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या बोलो इसका मतलब, हिल गई, ठीक है। वॉज रॉक्ड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ एलिगेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन्वॉल्विंग एग्जीक्यूटिव एट थ्री मेजर रिकॉर्ड कंपनीज एंड एन अटर्नी एट अ लीडिंग लॉ फर्म्स. Even the Rocks and Roll Hall of Fame, established in the mid 80s, 1991. Even the Rock and Roll Hall of Fame, established in the mid 80s, मतलब 1985, to recognize the contribution of those involved in the music business, has been criticized for overlooking women's contribution to the industry. ये भी एक चीज थी जिसको लुक डाउन अपॉन करा गया, ठीक। उसके बाद some Mary Wilson noted this discrepancy in supreme faith when she wrote about the Supreme's induction into the Hall of Fame in 1988 and her participation in all the Star Jam that traditionally occur after the ceremonies, ठीक है। She note this discrepancy, कौन सी discrepancy, कि यार for overlooking women's contribution to the industry, ठीक। Out of the nearly 100 performers, songwriters, label executives, and promoters now in the Hall of Fame, the only female inducts to date are this. तो दो ही लोगों के नाम थे, inducted as performers, some other person inducted as no as a non-performer, and this inducted as forefathers. तो यहाँ पे उसने यही चीज बोली कि यार जो विमेन का कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री है वो कम दिखाया गया है, ओवरलुक करा गया है इन म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है। Mary Wilson noted this discrepancy in supreme faith when she wrote about the Supreme's induction into the Hall of Fame in 1988 and her participation in the All Star Jam. तो ये पहले भी हो रहा था ना, जहां पे हम कुछ बात कर रहे हैं ओवरलुकिंग वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, 1985 में हो रहा है, 1988 में हो रहा है। तभी क्या उसने लिखा था इन 1991 द इशू ऑफ फेमिनिज्म रीसरफेस्ड, ठीक है, ओके। Though the battle over abortion rights caused women to recognize the underlying fragility of the gains the feminist movement had made, the media focused on other women's issues, further illuminated the struggles women continued to face in society. क्या बोल रहा है ऑथर, क्या बोल रहा है, दो द बैटल ओवर एबॉर्शन राइट्स caused women to recognize the underlying fragility of the gains the feminist movement had.
मतलब उनको ये चीज समझ आई, ठीक है, एक्नॉलेज कर पाए वो, कि दो द बैटल ओवर एबॉर्शन राइट कॉज्ड वुमेन टू रिकॉग्नाइज द underlying fragility of the gains at the feminist movement had made the media focus on other women's issues, further illuminated the struggles women continue to face in society. इस चीज का क्या मतलब हुआ? Though the women over abortion rights caused women to recognize the underlying fragility of gains की fragility of gains the feminist movement had made, ठीक है, कि उनको ये समझ आया कि यार इस बैटल के थ्रू कि यार कितना ज्यादा फ्रेजाइल गेन्स वो पाए हैं थ्रू दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं उनको मिल पाया थ्रू दिस एबॉर्शन राइट वाला जो मूवमेंट था. दो द बैटल ओवर एबॉर्शन राइट्स कॉज्ड वुमेन टू रिकॉग्नाइज द अंडरलाइन फ्रेजिलिटी ऑफ द गेन्स द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैड मेड, जो भी उन्होंने प्रोग्रेस करी उस फेमिनिस्ट मूवमेंट से, तो दो जो गेन्स थे वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल थे. फ्रेजाइल थे मतलब कि बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं थे, बहुत ज्यादा ऐसे रेवोल्यूशनरी नहीं थे, ठीक है. On November 3, 1991 story in the LA Times not only discussed the specific allegations mentioned above regarding sexual harassment, it also examined sexual harassment in the record industry as a whole and revealed the put up or show up bind women who experience harassment are placed in. A November 3, 1991 story in some no, ये मुझे न्यूज़पेपर ही लग रहा है, not only discuss the specific allegation mentioned about above regarding sexual harassment, it also mentioned the sexual harassment in the record industry as a whole and revealed the put up or shut up bind women who experience harassments are placed in, ठीक है. तो कुछ कुछ इसमें वो बता रहा है. अब हमें भले अगर ये आरसी ओवरऑल देखो तो तुम ये कह पाओगे ना कि इनिशियली क्या था यार, इनिशियली ये बोला उसने कि रीसरफेस कर गया इशू ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है. उसके बाद उसने क्या बोला, इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी थे. उसके बाद बोला कि यार 1985 1988 में भी ट्राई करा गया है जहां पे वुमेन का कंट्रीब्यूशन ओवरलुक करा गया था टू द म्यूजिक इंडस्ट्री. उसके बारे में बात करी. फिर आगे ये बताया कि यार ज्यादा कुछ हम अचीव नहीं कर पाए थ्रू दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है. बट 1991 में क्या हुआ, स्टोरी ऑफ दिस नॉट ओनली डिस्कस द स्पेसिफिक एलिगेशन मेंशन्ड अबव regarding sexual harassment, it also examines sexual harassment in the record industry as a whole, और ये सब चीजें. As a result, instead of going through the legal system, women working in the industry have been driven to create an informal grapevine to pass on information about companies deemed safe havens from sexual harassment and to warn each other about the bimbo haunts in different record company department. तो वो कह रहा है कि एज अ रिजल्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द लीगल प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि उनको शायद ये लगता होगा कि यार अंडरलाइंग फ्रेजिलिटी ऑफ द गेन्स थ्रू दिस मूवमेंट, उन्होंने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि यार वो आपस में क्रिएट एन इनफॉर्मल ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन क्या होता है? पास ऑन इंफॉर्मेशन की. ग्रेप वाइन कनेक्शन नहीं होता है वैसे तो. ग्रेप वाइन ये होता है कि मैंने तुमको बोला फिर तुमने किसी और को भी बताया फिर ऐसे करके वो बात फैलती चली गई. दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन, ठीक है. तो है ना. तो इसमें क्या हुआ कि जो विमेन ने क्या किया कि यार रादर देन टेकिंग अ लीगल स्टेप, उन लोगों ने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली थ्रू देयर इनफॉर्मल ग्रेप वाइन टू पास ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज डीम्ड सेफ हेवन फ्रॉम सेक्सुअल हेरासमेंट टू वॉर्न ईच अदर अबाउट द बिम्बो हॉर्न्स इन डिफरेंट रिकॉर्ड कंपनी डिपार्टमेंट, की कौन कौन सी जगह सेफ है, कौन कौन सी जगह शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो उन्होंने लीगल स्टेप नहीं लिया, ठीक. Since then, the increasing threat to women's reproductive freedom in the US has mobilized growing number of women to reawaken from a state of post-feminist complacency. Since then, क्या हुआ? The increasing threat to women's reproductive freedom in the US. Since then, increasing threat to women's reproductive freedom का मतलब क्या हो गया? राइट्स, अबॉर्शन राइट्स, ठीक है.
Since then, the increasing threat to women's reproductive freedom in the US has mobilized growing number of women to reawaken from a state of post feminist complacency. ठीक है, ये क्या समझ आया कि यार फेमिनिज्म मूवमेंट की बात करी और फिर उन्होंने कुछ ज्यादा एक्ट नहीं करा, वो अपने में ही उन्होंने समझ लिया कि अच्छा यार ये वाली चीज सेफ नहीं है, ये वाली चीज सेफ है. बट सिंस देन द इंक्रीजिंग थ्रेट टू women's reproductive freedom in the US has mobilized growing number of women to reawaken from a state of post feminist complacency. complacency मतलब कि यार अब मैं complacent हो गया हूं कि अब मैं और efforts नहीं करूंगा. ठीक है, तो उससे रीअवेकन कर दिया क्योंकि इंक्रीजिंग थ्रेट है टू वुमेन्स रिप्रोडक्टिव फ्रीडम. Attitudes towards a female presence in the workplace showed little sign of change in other areas of music industry. Attitude towards a female presence in the workplace showed little sign. Little sign का मतलब है कुछ ज्यादा फर्क आया नहीं. An article in Billboard in March this 1991 noted that though almost half the sales position in radio were held by women, there were far fewer women working in programming or on-air position. In the same article, Lisa, a program director at some place, related a story about the necessity of dressing down, a tactic similar to the had adopted when she was managing director at this. That also sound depressing familiar. I always make it a point to look like a slob. It's a little humiliating and degrading when an artist shakes your MD's hand and asks you to sleep with him. ठीक है, समझ गए क्या हुआ? ओके, ये समझ आ गया कि अच्छा यार ठीक है, ये सारी चीजें बोली थी, ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं. तुम्हारे लिटिल साइंस ऑफ चेंज हुए, बट कुछ आर्टिकल्स ने बताया कि कैसे मतलब क्या क्या चीजें फिर जो फीमेल्स थी उन लोगों ने एज अ टैक्टिक यूज करना चालू कर दिया. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन द एग्जांपल्स प्रोवाइडेड इन द पैसेज with which of the following assertions is it most likely that the author would disagree? Based on the examples provided in the passage, with which of the following assertion is it most likely that the author would disagree? Author किस चीज से disagree करेगा? सोचो. देखिए, working women face few pressures to maintain a physically attractive appearance. Working women face few pressures to maintain a physically attractive appearance. बताओ. इसके बारे में ऑथर ने कुछ बोल नहीं रखा है क्या? तो ये आउट ऑफ स्कोप हो सकता है क्या? ठीक है, इसके बारे में ऑथर ने कुछ अपनी राय दी नहीं है कि आप प्रेशर रहता है इसी फिजिकली अट्रैक्टिव अपीयरेंस रखने का नहीं रखने का. वी डोंट नो. Women have often tied the success of feminist movement to the fight over abortion. Women has often मतलब अक्सर tied the success of the feminist movement to the fight over abortion. क्या इस स्टेटमेंट पे ऑथर एग्री करेगा? और देखते हैं. देखो ये वाली लाइन पढ़ो. Since then, the increasing threat to women's reproductive freedom in the US has been mobilized growing number of women to reawaken from the state of post-feminist complacency. ठीक है.
क्या यहां से हम ये चीज मान सकते हैं कि वुमेन हैव ऑफन टाइड द सक्सेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द फाइट ओवर अबॉर्शन? अभी भी मुझे उतना समझ नहीं आ रहा कि यार नहीं पता, आउट ऑफ स्कोप लग रहा है। ठीक है, women working in the music industry are subject to similar obstacles as working women in other fields? क्या हम ये मानेंगे? Women working in the music industry are subject to similar obstacles as working women in other fields? और देखिए, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ बोला है? क्या जो कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसमें ही हुआ है? मतलब ये जो क्रिटिसाइज फॉर ओवरलुकिंग वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडस्ट्री, क्या सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में ये है कि ये और जगह पे भी हो रहा है? ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सिर्फ वुमेन के म्यूजिक इंडस्ट्री में हो रहा है कि अदर हो रहा है, बाकी सारी जगहों पे भी हो रहा है? इन अदर फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब है एबॉर्शन राइट्स में भी यही हो रहा है ना? ठीक है, तो ये वाली चीज हम मान सकते हैं कि ऑथर इस चीज पे क्या एग्री करेगा? ऑथर से अगर कोई बंदा आके पूछ रहा है कि वर्किंग वुमेन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री आर सब्जेक्ट टू सिमिलर ऑब्स्टिकल एज वर्किंग वुमेन इन अदर फील्ड्स, तो क्या तुम मानोगे? ऑथर क्या इस चीज से एग्री करेगा? ऑथर ने सिर्फ ये नहीं बोला ना कि सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है, उसने तो बोला है कि वुमेन के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन है, तभी वो फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात कर रहा है। तो ये वाली चीज से ऑथर एग्री कर जाएगा। Women working in the music industry have not achieved status commensurate with their contribution to the art, obviously, right? ये डी वाला ऑप्शन तो ऑब्वियस हो गया क्या, कि उनको उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है, मतलब उनको इतना हाईलाइट नहीं करा गया है। इन दोनों चीजों से ऑथर एग्री करेगा क्या? Women have always been discriminated against by men. बताओ, women have always been discriminated against by men, against by men. इससे ऑथर एग्री करेगा कि नहीं करेगा? Women has often tied the success of feminist movement to the fight over abortion. वो बंदा कह रहा है कि थर्ड वाले में ये चीज बोल रखी है। Though the battle over abortion rights caused women to recognize the underlying fragility of the gains the feminist movement had, the media focus on other women's issue further illuminated the struggles women continue to face in society. तो ये वाली चीज है, और बी वाली चीज जो है, वुमेन हैव ऑफन टाइड द सक्सेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द फाइट ओवर एबॉर्शन। बताओ, तो तुम्हारे पास ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, ई ऑप्शन भी है। अब तुम सिर्फ दो ही ऑप्शन लेके बैठे हो जिसका तुम श्योर हो कि आंसर नहीं हो सकता है। कौन सा आंसर मैं मार्क करूं? ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय वुमेन, अगेंस्ट बाय मेन, क्या हम ये मानेंगे इस चीज को? यहाँ पे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि 100% में से 100% बार ये चीज हो रही है। हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय मेन। ठीक है, ओके, तो तुम्हारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा? With which of the following assertion is it most likely that the author would disagree? किस पॉइंट से ऑथर डिसएग्री कर जाएगा? Working women face few pressure to maintain a physical attractive appearance. Working women have often tied the success of the feminist movement to the fight over abortion.
बी वाला जो ऑप्शन है वो है वर्किंग वुमेन हैव ऑफन टाइड द सक्सेस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द फाइट ओवर एबॉर्शन। मतलब कि क्या दो द बैटल ओवर एबॉर्शन राइट्स कॉज्ड वुमेन टू रिकॉग्नाइज द अंडरलाइन फ्रेजिलिटी ऑफ द गेन्स द फेमिनिस्ट मूवमेंट हैड मेड। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो भी सक्सेस ऑफ देयर फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो लो है, सो दे आर टाइंग दैट विद द एबॉर्शन राइट वाली थिंग। बी ऑप्शन जो है, तो क्या हम उससे एलिमिनेट करते हैं बी ऑप्शन को? Women have often tied the success of the feminist movement, though it was not so successful. बट जो भी उसकी सक्सेस रेट है ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द फाइट ओवर एबॉर्शन। समझ आ रहा है कि जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट में भी उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो एबॉर्शन वाले में भी उतना ज्यादा कुछ नहीं था। Women have often tied the success of the feminist movement to the fight over abortion, कि जो भी रिजल्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट से आया है उसी चीज के बेसिस पे दे आर फाइटिंग ओवर अबॉर्शन। लाइक वुमेन हैव ऑफन टाइड जो भी उसका सक्सेस रेट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट टू द फाइट ओवर अबॉर्शन, कि यार उसमें तो हम नहीं जीत पाए थे, तो उससे हम समझ पाए फ्रेजिलिटी ऑफ आवर गेन्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो अब बचता है ए और ई ऑप्शन। ए ऑप्शन कह रहा है कि वुमेन हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय वुमेन। ए ऑप्शन है वर्किंग वुमेन फेस फ्यू प्रेशर टू मेंटेन अ फिजिकली अट्रैक्टिव अपीयरेंस। इसके बारे में एकदम बात नहीं हुई है ना? एकदम भी बात नहीं हुई है। इसके बारे में तुम्हारे पास फिर भी एविडेंस होगा क्या कि हाँ ये एक पल के लिए हम ये मान सकते हैं कि वुमेन हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय मेन? ए वाला ऑप्शन ऑप्शन जो है वो हम एक सेकंड के लिए भी नहीं मान सकते ना। एक्सट्रीम के बेसिस पे तुम एलिमिनेट करते नहीं हो। ई वाली चीज में ऑथर फिर भी थोड़ा एग्री कर सकता है, मे बी 50%। बट ए वाले में वो 50% भी नहीं एग्री करेगा ना। सो इट वॉज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये वाला इसका एकदम क्लियर कट तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा कि यार ये है कि ये है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज है कि ए इधर है तो ई इधर है। समझे? सी और डी तो पीछे है और बी कहीं इधर है। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे इस तरीके का भी होगा जहां पे तुम कहोगे कि अरे यार मतलब ये तो बहुत ज्यादा क्लोज है, बट दैट इज फाइन। तो उसमें तुम ज्यादा एक्यूरेसी ला भी नहीं सकते हो। समझे? सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए। कायदे से तो हाँ करना चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो टाइम कम लगाना चाहिए। अगर सी और डी हटा दिए और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ए और ई ही ऑप्शन है, तो किसी पे भी मार्क करो और आगे बढ़ो। पहले हम लोग गार्बेज हटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड बाय द ऑथर इन द पैसेज एज एविडेंस ऑफ द रीअवेकनिंग ऑफ फेमिनिज्म एक्सेप्ट कौन सी चीज नहीं बोली है? रिलीज ऑफ द फिल्म दिस, रिलीज ऑफ द फिल्म दिस, आ देखिए, फ्रॉम द रिलीज ऑफ द फिल्म दिस। नाम हमेशा चेक कर लेना, कहीं नाम ही ना डिफरेंट हो जाए। नाम सेम है ना? बोलो, तो इस चीज से था अवेकन हुआ फेमिनिज्म। वुमेन्स रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ एबॉर्शन राइट, ये इस चीज से भी करा था ना। वुमेन्स कहाँ गया? थ्रेट ऑफ हैज मोबिलाइज ग्रोइंग नंबर ऑफ दिस, मोबिलाइज ग्रोइंग नंबर ऑफ दिस मतलब उनको जागरूक किया और फिर उनको उस डायरेक्शन में लेके आया। इंडक्शन, द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इनटू द हॉल ऑफ फेम, द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इनटू द हॉल ऑफ फेम, क्या इससे ये एविडेंस है अब रीअवेकनिंग ऑफ फेमिनिज्म का? देखते हो। wrote induction into the hall of fame in this and her participation in this। पर हॉल ऑफ फेम में तुमने इसको जोड़ दिया, उससे तुम्हारा
हमारा जो क्वेश्चन क्या था कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज साइटेड बाय द ऑथर इन द पैसेज एज एविडेंस ऑफ द रीअवेकनिंग ऑफ फेमिनिज्म, बट इस चीज से रीअवेकनिंग ऑफ फेमिनिज्म नहीं हुआ ना क्लियरली, शायद, तो इसको होल्ड करते हैं। द पब्लिकेशन ऑफ दिस पब्लिकेशन ऑफ दिस से हुआ था क्या? पब्लिकेशन ऑफ सच बुक्स एज नाउ विल द ब्यूटी मिथ, इंक्रीज्ड अटेंशन गिवन टू इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इस चीज से भी हुआ था क्या? कहीं पे लिखा हुआ था। हेयरिंग ब्रॉट द इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इनटू द पब्लिक आईज, ठीक है, तो इस चीज से भी हो सकता है। तो क्या सी वाला ऑप्शन हो जाएगा? अब ये वाला क्वेश्चन इजी था, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। तो अब इट्स मोर अबाउट कि कौन सा क्वेश्चन तुम छोड़ देते हो, कौन सा क्वेश्चन तुम लगा लेते हो, ठीक है। फर्स्ट में ज्यादा टाइम देने से बेटर था कि सेकंड को एब्सोल्युटली सही करना, ठीक है। आउट ऑफ 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तुम इस तरीके से कर सकते हो या मे बी 2 कर सकते हो, तो तुम टाइम सेव कर पाओगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलत तो होने की बहुत हाई चांस है, क्योंकि ए और ई इतने क्लोज है, टाइम वहां होगा नहीं, तुम डिसाइड कर नहीं पाओगे। बेस्ट यही तरीका है कि जल्दी से जो भी मार्क करना है मार्क करो, आगे बढ़ो, ठीक है। और सिर्फ एक्सट्रीम है इसलिए नहीं एलिमिनेशन होता है, ये चीज भी ध्यान रखना प्लीज, ठीक। एक ऑप्शन ऐसे ही एक बार मैं यही कैट अपने ही पेपर वाले में दे रहा था, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। इन्फ्रेंस का क्वेश्चन था, डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज, और मुझे पता था कि ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, और डी ही लग रहा है मुझे। वहां पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था उसको सेलेक्ट कर देना, क्योंकि 3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करे और नन ऑफ दीज मार्क करा, और नन ऑफ दीज ही उसका आंसर था, कि कोई भी तीनों में से इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम कि एक्सट्रीम है तो फिर मार्क कर दिया। वेट वेट, सही है। Suppose the number of female executives within the music industry has not increased measurably within the past 2 decades. If this statement is true, what effect would it have on the author's argument? क्या इफेक्ट आएगा ऑथर के आर्गुमेंट? क्या ऑथर का आर्गुमेंट क्या था यार ओवरऑल, कि कुछ फर्क नहीं आ रहा है? क्या यही ऑथर का आर्गुमेंट था? ऑथर ने क्या बोला? ऑथर ने कहा, बोला बोला कि यार कुछ ज्यादा कुछ लिटिल एविडेंस, यहाँ पे बोल रखा है ना, एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस शो लिटिल साइंस ऑफ चेंज इन अदर एरियाज ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। क्या ये ऑथर का स्टेटमेंट है? तो ऑथर इस चीज को मान रहा है ना कि लिटिल लिटिल चीजें हो रही है, बहुत ऐसे कुछ हम इम्प्रूवमेंट ला नहीं पा रहे। तो अगर ये चीज हो ही रही है कि यार इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो हम इन लाइन विद ऑथर है ना, ऑथर के साथ ही सोच रहे हैं ना। इट वुड सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, ठीक है यार, होल्ड कर देते हैं। इट वुड कॉन्ट्रडिक्ट द आर्ग्यूमेंट, बट इट इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, क्योंकि ऑथर भी इसी चीज को मार रहा है ना, मान रहा है। अगर number of female executives within the music industry has not increased measurably within the past 2 decades, तो उस चीज में ऑथर की बात हम मान लेंगे क्या, कि हाँ यार अब वो फायदा है नहीं, हो नहीं रहा इससे कुछ। व्हाट इफेक्ट वुड इट हैव ऑन द ऑथर्स आर्गुमेंट? तो ऑथर के साथ इन लाइन होंगे, ठीक है। ई ऑप्शन तुरंत हटा देना, इट वुड नीदर सपोर्ट नॉर कॉन्ट्रडिक्ट द ऑथर आर्गुमेंट, ये होता नहीं यार, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव भले 1% हो, बट होगा कुछ लेफ्ट राइट। तो ई हटा देता हूँ, बी हटा देता हूँ, अब बचता है ए, सी और डी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए क्या कह रहा है? इट वुड सपोर्ट द आर्गुमेंट दैट वुमेन ऑलरेडी होल्ड टू मेनी पोजीशन एट द एग्जीक्यूटिव लेवल, ये तो गलती हो गया। इट वुड सपोर्ट द आर्गुमेंट दैट वुमेन ऑलरेडी होल्ड टू मेनी पोजीशन, जबकि ये तो ऑपोजिट था,
कि बहुत कम वुमेन ही पहुंच पा रही है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट वुड सपोर्ट द आर्गुमेंट दैट नंबर ऑफ फीमेल इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम विल इंक्रीज रैपिडली इन द कमिंग ईयर। अगर किसी से चेंज ही नहीं हुआ है तो इंडक्टेड इन दिस, तो ये तो ऑपोजिट हो, इट वुड अपोज द आर्गुमेंट, राइट। तो सी हट गया। डी क्या है, डी ही आंसर वैसे होना चाहिए, इट वुड सपोर्ट द आर्गुमेंट दैट वुमेन आर नॉट मूविंग अहेड इन सेक्टर्स सच एज द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो लिटिल एविडेंस वर शोन ऑफ चेंज इन अदर एरियाज ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, यही लिखा हुआ है क्या। तो ये डी वाला हमारा आंसर हो गया। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे टू सॉल्व। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें डाउट रहता, और वो डाउट रहेगा, उसका तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है।